سب سے پہلے خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت منسوخی کی وارننگ کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پیش ہو گئے۔ ویل چیئر اور سیکیورٹی حصار کے ساتھ عمران خان کمرہ عدالت پہنچے۔ عمران خان کے خلاف 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آج ہی بیان ریکارڈ کرا دیں۔ یہ بیان اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک پیپر دے دیں، پولیس کو بیان ریکارڈ کرانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پر اعتراض، کہا کہ عمران خان نے پرائیویٹ اسپتال کی رپورٹ دی جو قابل قبول نہیں۔ لاہور سے روانگی کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی نے پیر میں سوجن کے باوجود پیشی کو عدالتی احترام کی دلیل قرار دیا۔ قتل کی منصوبہ بندی کا الزام بھی دہرا دیا، کہا بیرونی ایجنسی یا دہشت گرد سے نہیں، ایک آدمی سے خطرہ ہے۔ عسکری اداروں کے خلاف بیان کے کیس میں 4 مرتبہ عدم پیشی پر عدالت نے گزشتہ روز آخری مہلت دی تھی عمران خان کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت منسوخی کی وارننگ کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج پیش ہو گئے۔ ویل چیئر اور سیکیورٹی حصار کے ساتھ عمران خان کمرہ عدالت پہنچے۔ عمران خان کے خلاف 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ زہیب، یہ بھی بتاتے چلے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آج ہی بیان ریکارڈ کروا دیں۔ یہ بیان اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک پیپر دے دیں، پولیس کو بیان ریکارڈ کروانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پر بھی اعتراض اٹھا دیا، کہا کہ عمران خان نے پرائیویٹ اسپتال کی رپورٹ دی ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل عمران خان نے شوکت خانم سے ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی تھی جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اعتراض بھی اٹھایا ہے۔ اور عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت کی طالبان سے مذاکرات کی پالیسی غلط تھی۔ عمران خان نے اس پر جواب دیا کہ افغان حکومت سے مذاکرات جاری تھے کہ ٹی ٹی پی والوں کو کیسے واپس بھیجنا ہے۔ مذاکرات جاری تھے کہ اس دوران ہماری حکومت چلی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ محمود خان نے وقت پر بتا دیا تھا کہ طالبان واپس آ رہے ہیں، ہم نے بھی وقت پر بار بار بتایا کہ طالبان دوبارہ آ رہے ہیں۔ مزید کہا، مجھے لگتا ہے میرے خلاف مقدمات کی ڈبل سینچری ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ کرکٹ میں تو میں 170 تک ہی پہنچ رہا تھا، ڈبل سینچری نہیں ہوئی تھی۔ آزاد کشمیر میں کس نے سب کروایا، وہاں کے سابق پی ایم بتا چکے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کئی بریفنگز میں کہا کہ ٹینکوں میں تیل نہیں۔ میں حیران تھا یہ کس قسم کا آرمی چیف ہے جو یہ بات کرتا ہے۔ عمران خان کی شادی کی تقریب اور نکاح فراڈ پر مبنی تھا۔ پیش گوئی کے زیر اثر عمران خان نے نکاح کیا۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کو حکم ملا تھا کہ 2018 کے پہلے دن نکاح ہوگا، دونوں میاں بیوی رہیں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ عدت کے دوران نکاح کے کیس میں نکاح کے گواہ اور عمران خان کے سابق دوست اون چودھری نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا اور کہا کہ 31 دسمبر 2017 کو عمران خان نے کہا 1 جنوری کو بشرا بی بی سے نکاح کرنا ہے، انتظامات کرو۔ نکاح سے قبل مفتی سعید نے بشرا بی بی کے طلاق نامے کا پوچھا تو عمران خان اور بشرا بی بی نے کہا طلاق نامہ دے دیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی عدت کا دورانیہ 14 اور 18 فروری 2018 کے درمیان مکمل ہوتا تھا۔ اون چودھری نے مزید بتایا کہ بشرا بی بی کے کہنے پر ہی عمران خان نے ای میل پر ریحام خان کو طلاق دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عدالت بلائے تو گولی، پلاسٹر، معذوری، بالٹی، ڈبہ اور اب ویل چیئر۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کلثوم نواز شریف کی بیماری اور پھر موت کا مذاق اڑانے والا، نواز شریف کی بیماری اور شہباز شریف کی کمر درد کا مذاق اڑانے والا آج ویل چیئر پر جھوٹ بول رہا ہے۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے آج قوم کو نظر آ رہا ہے۔ خارجہ امور کی بات کرتے ہیں تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت پہنچ گئے ہیں۔ گوا میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ روانگی سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کے دورے میں دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کریں گے۔ ان کا جانا یہ پیغام ہے کہ پاکستان ایس سی او کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ روابط، تجارت اور باہمی تعاون سب کے مفاد میں ہے۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ ایس سی او چارٹر سے متعلق ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدار آگے بڑھاتے ہوئے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اجلاس کی کوریج کے لیے جیو نیوز کی ٹیم گوا میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے گوا بھارت جانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر بھی ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے۔
फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी की मोहब्बत में इन हुक्मरानों के लिए कश्मीरियों, मुसलमानों, अक़लियतों पर मज़ालिम की कोई अहमियत नहीं। मोदी को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है और एससीओ एक अहम फोरम है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस फोरम को अपने खित्ते की बेहतरी के इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने कहा। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है और एससीओ एक इम्पोर्टेंट फोरम है। अगर हमने यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन हासिल करनी है तो ये इम्पोर्टेंट फोरम है और इस फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने खित्ते की बेहतरी के लिए। तो अगर गए हैं एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए तो मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं। कौमी असम्बली ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 15 दिन के अंदर अंदर मामले की मुकम्मल छानबीन करके रिपोर्ट पेश करेगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान साबिक स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज़ पर मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर संगीन इल्ज़ामात हैं, उंगलियां उठ रही हैं। कौमी असम्बली को इस अहम इशू पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपने असासे और ज़राए आमदन बताने चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मामला PAC को भिजवा दिया। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चीज़ ये है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं, जो कि हम सबको तकलीफ है, बिकॉज हमारे लिए तो सारे जज मोअज़्ज़ज़ होते हैं, मगर एक जज साहब जिनके खिलाफ बेशुमार मवाद इकट्ठा हो गया, पाकिस्तान की सारी बार एसोसिएशंस एंड काउंसिल्स ने रेफरेंस मूव कर दिए। उन एक जज साहब की वजह से जो बदनामी हो रही है बाकी जज साहबान की, वो बड़ी अफसोसनाक है और तकलीफ दे भी है। मैं जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखें, ताकि उन जज साहब के ऊपर उंगली ना उठे, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ, कि कौमी असेंबली या यहाँ की जो कमेटीज हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा करे ताकि उनका नाम क्लियर हो जाए। और क्लियर होने का नाम, उनका जो सबसे आसान तरीका जो मेरे जहन में आता है, देखें, उनको ये बताना चाहिए कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। उन्होंने 11 करोड़ का या 11.5 या 10 करोड़ का एक प्लॉट खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर उन्होंने टैक्सेस कितने दिए, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आए, ये सारी चीजें पता करनी ताकि उंगली ना उठाई जाए जज साहबान से। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज दिया जाए विद द डायरेक्शन कि कोई 10 दिन या 15 दिन में इंक्वायरी करें। इंक्वायरी किसने करनी है? स्पेशल ऑडिट कराएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनकी जॉइंट टीम बने और ये ऑडिट करके ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास पेश हो, ताकि हम इनके ऊपर उंगलियां उठनी बंद हो जाएं। अगर हम ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये ऑडिट करवाना जो ओवरसाइट का काम है वो कमेटीज के पास और पार्लियामेंट के पास है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज को, ताकि बाकी मौजूद जज साहिबान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मेरी आपसे गुजारिश है इसको जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के केस को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाए विद द डायरेक्शन के FBI और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पेशल ऑडिट 15 दिन में कंडक्ट करके सोर्स ऑफ इनकम, कहां से पैसे आए, कितने का प्लॉट लिया, मार्केट वैल्यू किया है, टैक्सेस कितने जमा कराए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना लगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं ताकि बाकी जज साहबान के ऊपर ये उंगली ना उठाई जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको काइंडली रेफर कर दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दिस मैटर इज रेफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। IMF ने पाकिस्तान में पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी इदारे की आउट रिपोर्ट के मुताबिक
रवां बरस महंगाई की औसत शरह 27% रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 8.5% रहने का इम्कान है। आलमी इदारे की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का बजट खसारा 6.8%, जबकि अगले साल 8.3% तक जाने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 21% है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देरदूनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 6 सिपाही शहीद हो गए, 3 दहशत गर्द हलाक जबकि 2 दहशत गर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देरदूनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को मौसर जवाब दिया, 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया और 2 दहशत गर्द जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 6 सिपाही भी शहीद हो गए। शहदा में टांग के हवलदार सलीम खान, कोहाट के नायक जावेद इकबाल शामिल हैं। सिपाही नज़ीर, सिपाही हज़रत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन और सिपाही बिस्मिल्लाह खान भी फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके की क्लियरेंस की जा रही है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि G20 ममालिक के रहनुमाओं से अपील है कि मकबूजा कश्मीर में इजलास में शरीक ना हों। हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, सऊदी अरब समेत G20 ममालिक में शामिल तमाम ममालिक हमारी अपील पर गौर करें। हिंदुस्तान में इस वक्त अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इन हालात में G20 ममालिक का इजलास और इजलास की बाद सरगर्मियों को मकबूजा कश्मीर में करने की हिंदुस्तान की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम G20 में शामिल इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा समेत सबसे अपील करते हैं कि वो भारत की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए भारत के जारहाना इक़दामात, खित्ते में बदअमनी फैलाने की साजिशों, अक़लियतों और कश्मीरियों पर मज़ालिम को मद्देनजर रखते हुए हमारी अपील पर गौर करें। हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मज़लूम कश्मीरियों और अक़लियतों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हिंदुस्तान में G20 के हवाले से किसी भी किस्म की सरगर्मी में शामिल न हो। हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 200 भारतीय माहीगीरों की रिहाई का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। भारतीय माहीगीरों को 12 मई को डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से रिहा किए जाने की तवक्को है। ईदी फाउंडेशन माहीगीरों को बजरिया सड़क लाहौर तक पहुँचाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सिंध हर भारतीय माहीगीर को 5000 रुपये, खाने पीने की अशिया और तहफ़ देगी। 13 मई को माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। सिंध की जेलों में 568 भारतीय माहीगीर मौजूद हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। तालिब इल्मों को रोज़गार फराहम करने के लिए स्टॉल्स का एहतमाम किया गया। वहीं कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जहां ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से भी ट्रेनिंग के मौक़े दिए जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगी शवाला असलम। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जारी जॉब फेयर का एक्सपो सेंटर में इनकाद तो हो गया है। मल्टी नेशनल कंपनीज़ और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज़ मौजूद हैं और मुलाजमत फराहम कर रहे हैं तलबा और तालिबात को। वहीं यहाँ पर ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए भी काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। इस स्टॉल की तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो छोटे स्केल से बड़े स्केल तक अपने कारोबार को लेकर जाएँ, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें 6 महीने का कोर्स करती हैं बच्चियाँ और उसमें उनको डेली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। एंड ऑफ दी 6 मंथ्स हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये एक्सपो सेंटर में जारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जो जॉब फेयर है ये रात तक जारी रहेगा, जिसमें बड़ी तादाद में तालिब इल्मों का सिलसिला है, उसकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी, पेशावर में होने वाली बारिश और यालाबारी से इस वक्त मौसम दिल फरेब हो चुका, लेकिन बारिश और ओलों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई।
जी, इस वक्त पेशावर में तेज बारिश जारी है, ज़ालाबारी भी हो रही है, ओले गिर रहे हैं आसमान से और मौसम इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। हर तरफ ही शहरी जो है वो इस वक्त अपने मोबाइल निकाल कर इस मंजर को रिकॉर्ड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब हवा जो है वो ठंडी हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो भी बाहर निकले हैं और इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, जबकि जो तेज़ बारिश और ये जो ज़ालाबारी हुई है उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ से भी जो बारिश का सिलसिला जारी था उसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका था, मगर इस वक्त जो है मौसम खासा ठंडा भी हो चुका है। इस वजह से महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और ज़ालाबारी का ये सिलसिला आइंदा कुछ रोज़ जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। जी, कराची में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मस्कट से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पर खून के नमूने लिए गए, जिसमें मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा मुसाफिर में गुज़श्ता 5 रोज़ से चेहरे, पीठ और निचले धड़ पर सुर्खी मायल धब्बे मौजूद हैं। मुसाफिर को 1 हफ्ते से बुखार की शिकायत भी थी, जिस पर उसे फौरी तौर पर करंतना कर दिया गया है। मुतल्लिका फ़्लाइट में इब्तदाई तौर पर 4 अफराद के खून के नमूने लिए गए, जिसमें से 3 मनफी और 1 मुस्बत आया है। मुतासरा मरीज़ मस्कत में ड्राइवर था, जिसकी उम्र 36 साल है। महकमा सेहत ने परवाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिरों से राब्ते भी शुरू करके तफसीलात तलब कर ली हैं। इससे कबल मुल्क में 2 मंकी पॉक्स के केस सामने आए थे, जो सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो चुके हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 9 मई तक तौसी कर दी है। अदालत ने इमरान खान के 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 9 मई तक तौसी कर दी है। 7 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त की थी, जिसके ऊपर फैसला महफूज किया था। 2 का फैसला सुना दिया गया है, जिसमें इमरान खान को ज़मानत दे दी गई है। अदालत ने फैसला महफूज किया था और अभी ये खबर आ रही है कि इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 9 मई तक तौसी कर दिया। वैसे सुजई ने ज्वाइन किया। अवैस बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास? जो ऑर्डर किया है उसमें इमरान खान की जो 7 मुकदमात हैं उनमें 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की है और इमरान खान को मुतलका कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। यानी कि इमरान खान 7 मुकदमात में जमानत के लिए अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। ये वो मुकदमात हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ के बाद मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे और इनमें दहशतगर्दी की दफा लगी थी। इसके अलावा 2 दीगर मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी हुई है 9 मई के लिए। और ये जो 2 मुकदमात हैं ये F8 कचहरी के मुकदमात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त चल रही है। इमरान खान के वकील की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि कचहरी जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इस्तदा है कि अदालत ये जमानत की दरख्वास्त खुद सुने। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि जब तक कचहरी नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो जाती G11 उस वक्त तक इस केस को डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर की है और 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी है। ये जो 2 मुकदमात हैं, एक मुकदमा थाना रमना में दर्ज हुआ था मजिस्ट्रेट की मदियत में, अस्करी इदारे के अफसरान को धमकियों का मुकदमा है एक, जबकि दूसरा मुकदमा वो है कि जो बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की मदियत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था उस वक्त जब तोशा खाना रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन से फैसला आने के बाद तोड़ फोड़ हुई थी, हंगामा आराई हुई थी और उस वक्त बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमला किया गया था। कुछ अच्छा, वैसे तफसीलन बताइएगा। आपने 2 कचहरी के मुकदमात का तो बता दिया, बाकी में क्या फैसला सुनाया गया है ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा। जी देखिए, 2 मुकदमात में तो अबूरी जमानत में तौसी हुई है जो कचहरी के मुकदमात हैं, जबकि दीगर जो 7 मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो जमानत का केस सुन रही थी। ये गैर मामूली रिलीफ था क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने हिफाजती जमानत ली थी तो ये हिदायत की गई थी कि मुतलका ट्रायल कोर्ट में जाएं, लेकिन मुतलका ट्रायल कोर्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत बनती है उसकी बजाय ये बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और उनका ये कहना था इमरान खान के वकला का कि हाई कोर्ट में रसाई ज्यादा आसान है, लिहाजा यहाँ पर ये केस सुने। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज भी दौरान समाअत ये रिमार्क किए कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो जमानत की दरख्वास्त सुनने का मुतलका फोरम है वो मुतलका ट्रायल कोर्ट ही है और अल्टीमेटली आपको मुतलका ट्रायल कोर्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जाना है। आज अदालत ने ये 7 मुकदमात में जो जमानत का
معاملہ چل رہا تھا جس میں عبوری ضمانت پر تھے عمران خان، اس میں حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے یعنی انہیں 10 روز کے لیے پروٹیکشن دی ہے، حفاظتی ضمانت منظور کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ متعلقہ ٹرائل کورٹ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس سے رجوع کریں۔ اب 10 روز کے اندر عمران خان دہشت گردی کے 7 مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کریں گے اور وہاں سے وہ عبوری ضمانت حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے ذرا یہ صورتحال واضح کرتے چلیں، اویس ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ 7 مقدمات جن میں ATA یعنی دہشت گردی کی دفعات شامل تھیں، اس میں پروٹیکٹیو بیل حفاظتی ضمانت 10 روز کے لیے دی گئی ہے عمران خان کو، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ باقاعدہ ضمانت لینے کے لیے آپ بالکل انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کریں۔ باقی 2 کچہری کے مقدمات تھے جو بیل کے لیے عمران خان نے رجوع کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں کیس تھا اور ایک دوسرا تھانہ رمنا میں ایک اور کیس ہے، اس کے لیے 9 مئی تک ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ جی تو یہ فیصلہ دیا ہے عدالت نے، اور جیسے علینا نے بتایا کہ اور ایاز اکبری اویس بھی بتا رہے تھے کہ 7 مقدمات ہیں، اس میں جو مقدمات ہیں جن میں ATC لگی ہوئی ہے یعنی 7 ATA لگی ہوئی ہے، اس میں عدالت نے کہا ہے کہ 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ATC سے رجوع کریں، انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کریں، اور 2 مقدمات جو ہیں ان میں 9 مئی تک انہوں نے ضمانت میں توسیع کر دیا۔ اویس مزید ذرا ڈیٹیلز دیجئے، یہ جو فیصلہ سنایا عدالت نے کیا فیصلہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 9 مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں تھیں چیئرمین PTI عمران خان کی۔ عمران خان آج ویل چیئر پر کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، ان کی جانب سے جو میڈیکل رپورٹ گزشتہ روز داخل کرائی گئی تھی عدالت میں اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے اعتراض اٹھایا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرائیویٹ اسپتال کی میڈیکل رپورٹ ہے جو کورٹ قبول نہیں کر سکتی، یہ قابل قبول نہیں ہے، سرکاری اسپتال کی رپورٹ صرف قبول کی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس طرح کی رپورٹ کو تسلیم کیا گیا تو پھر آئندہ کوئی بھی ملزم حاضری سے استثناء کے لیے پرائیویٹ اسپتال کی رپورٹ پیش کرے گا۔ عدالت نے اس پر یہ کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹ ابھی تک تسلیم نہیں کی اور اسی لیے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں خود آج پیش ہوں، اور وہ آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ عدالت نے ان کی جو استدعا تھی وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون۔ اچھا ویسے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عمران خان ابھی وہیں پر موجود ہیں یا پھر وہ روانہ ہو گئے ہیں؟ کیا ATC میں بھی کچھ پیش ہونے کا ارادہ ہے ضمانت کے لیے؟ عمران خان اس وقت کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے ہیں، کورٹ جو ہے وہ بھی اٹھ گئی ہے۔ کورٹ نے جو آرڈر سنایا ہے وہ عمران خان کی اور ان کے وکلاء کی موجودگی میں سنایا گیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 7 مقدمات ہیں اس میں عمران خان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، حفاظتی ضمانت دی جا رہی ہے اور وہ 10 روز کے اندر متعلقہ کورٹ یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کر لیں، جبکہ جو F8 کچہری کے 2 مقدمات ہیں عسکری ادارے کے افسران۔ اویس کیا ہمارے پاس یہ معلومات ہیں کہ عمران خان کا پلان کیا ہے؟ کیا وہ آج اسلام آباد میں ہی رہیں گے یا پھر لاہور روانہ ہو جائیں گے؟ جی اس متعلق عدالت کو تو آگاہ نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت نے بھی جو ہے ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے اور جو دوسرے کیسز نمٹائے ہیں ضمانت کے ان میں بھی 10 روز کا ٹائم دیا ہے۔ یہ اویس ذرا آپ کو 2 منٹ روکیں گے، یہ زہیب غالباً جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں شاید عمران خان ہیں کیونکہ بڑے سیکیورٹی حصار میں لے کے آیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ شیلڈز ہیں، تو کوئی بڑا امپورٹنٹ شخص ہے جس کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ اب یہ ذرا کنفرم بھی کر لیں گے اویس، کیا یہ جو سیکیورٹی حصار میں لے کے آیا جا رہا ہے عمران خان کو لے کے آیا جا رہا ہے عدالت احاطہ عدالت سے باہر؟ جی بالکل، یہ عمران خان کو احاطہ عدالت سے باہر لے کے جایا جا رہا ہے، سیکیورٹی حصار میں ان کو یہاں پر بھرپور سیکیورٹی دی گئی ہے۔ آج جو اضافی سیکیورٹی تھی اس پر بھی کمرہ عدالت میں بات ہوئی اور یہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ یہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، جس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ عمران خان کو تھریٹس ہیں تو زیادہ سیکیورٹی ہونا تو بہتر ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا، اور یہ جو زیادہ سیکیورٹی ہے اس سے آپ خوفزدہ نہ ہو بلکہ آپ کو اس سے تحفظ کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ یہ تاثر نہ لیں کہ یہ گرفتاری کے لیے ہے، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے اس سیٹ پر یعنی چیف جسٹس اطہر من اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اس لیے جو سیکیورٹی کا کام ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو کرنے دینا چاہیے۔ اچھا ویسے یہ بھی بتائیں کہ عمران خان ویل چیئر پہ ہی احاطہ عدالت اور پھر کمرہ عدالت میں گئے یا پھر خود اپنے پاؤں پر چل کے گئے؟ نہیں جی، وہ بالکل ویل چیئر پہ تھے اور یہاں پہ اچھا یہ ہم ویل چیئر دیکھ بھی سکتے ہیں بالکل کہ ان کی گاڑی کے اوپر ہے وہ ویل چیئر منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ویل چیئر پر جب کورٹ روم میں آئے عمران خان تو ان کو پروزیکیوشن اور جو ڈیفینس لائرز ہیں ان کے بالکل درمیان میں بٹھایا گیا اور عمران خان کے جو رائٹ سائڈ بنتی ہے اس پر PTI کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ موجود تھی، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور دیگر PTI رہنما، جبکہ ان کے لیفٹ ہینڈ پر پروزیکیوشن کی سائڈ کے جو لوگ تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل
मुनव्वर इकबाल दुगर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो बहुत एतराज़ात उठा रहे थे इमरान खान के मेडिकल के हवाले से, उनकी मेडिकल रिपोर्ट पर, वो उनके लेफ्ट जानिब बैठे हुए थे। और आज इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए खसूसी तौर पर जिक्र भी किया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का। उन्होंने कहा कि मेरे जहन में ये बात थी एक मौका पर कि इमरान खान जब आए हैं और उनकी गाड़ी को अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो ये सोच रहे थे कि अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान आ गए हैं, कमरा इहाते अदालत के बाहर मौजूद हैं, तो उनकी हाजिरी वहाँ पर ही लगा ली जाए। लेकिन फिर उनके जहन में ये ख्याल आया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो बैरिस्टर जहांगीर जदून है, वो सबसे पहले इस पर एतराज़ करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इसी वजह से ये इस्तदा नहीं की गई और कोर्ट रूम। तो अदालत में कोई रिमार्क्स आए इससे मुताल्लिक, मेडिकल रिपोर्ट से मुताल्लिक कि ये प्राइवेट अस्पताल से उनकी रिपोर्ट? दिफा कैसे किया है इमरान खान के वकील ने इसका जो एतराज़ उठाया? जी देखिए, इस हवाले से कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह किया है और क्लियर किया है कि कानून ये कहता है कि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट ही जमा कराई जा सकती है। उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि हमने जो प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट थी उसे तस्लीम नहीं किया, इसीलिए इमरान खान को आज पेश होने का ऑर्डर दिया था। गुज़िश्ता रोज उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त तो मंजूर कर ली गई थी, लेकिन साथ ही साथ ये ऑर्डर दिया गया था कि इमरान खान आज पेश हों हर सूरत, और अगर वो पेश ना हुए। अवैस ये बताइएगा कि आज जो इमरान खान के वकील ने जो रिप्रेजेंट किया है इमरान खान को, तो बुनियाद जमानत की यही बनाई कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और उनकी टांग में सूजन है, व्हील चेयर पर भी आए हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदालत ने उस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं किया है, तो फिर बुनियाद क्या बनी एक्सटेंड करने की? देखिए, ये जो अबूरी जमानत में तोसी हुई है उसका मेडिकल ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट जो पेश हुई थी उनकी, जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया, वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी। और वो कल जब ये केस लगा और मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई तो उनकी ये इस्तदा थी कि अबूरी जमानत में तोसी कर दी जाए, यानी तोसी से मुराद ये थी कि लंबी एक डेट दी जाए, उस वक्त तक उनकी अबूरी जमानत में तोसी हो। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक रोज का वक्त दिया था और उन्होंने कहा था कि आज, यानी गुज़िश्ता रोज जब ऑर्डर किया तो उन्होंने एक दिन की मोहलत देते हुए कहा कि आज के रोज इमरान खान खुद जाती हैसियत में पेश हों, वरना उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। ये कोर्ट का ऑर्डर था, जिसके बाद इमरान खान आज व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पेश हुए। इसका मतलब यह है कि जो उनकी जानिब से एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई थी प्राइवेट अस्पताल, जो शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट थी, उसको कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और आज कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर उनके अवैस बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जो मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे नाजरीन, उनको बताते चलें कि इमरान खान अदालत से रवाना हो गए हैं। 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई है और 2 में 9 मई तक उनकी जमानत मंजूर की गई है।